Hi, I'm Manish Goswami, and in this presentation, I have explained organizational theory with examples from scriptures. Organizational theories. तो सबसे पहले हम थ्योरी का मतलब समझते हैं. So theory means is a set of ideas or principle. Means किसी भी सब्जेक्ट के कुछ certain principles या rule होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं. Similarly, जो organization में जो principles होते हैं उसे हम organization theory कहते हैं. और इस organization theory में include होता है कि कैसे एक organization को structure follow करना चाहिए, क्या relationship होने चाहिए management and subordinates के बीच, and as well as with external environment. So this is known as organizational theories. So here are the types of organizational theory. So first is classical theory, second is new classical theory, and the third one is modern theory. So bureaucracy theory. So first theory was given by Max Weber. उनका contribution रहा. So इस theory में उन्होंने एक proper organization में क्या rules, roles, responsibility, structure क्या follow होना चाहिए वो उन्होंने अपना contribute इस theory में किया. So here are the characteristics of bureaucracy theory. So first is division of labor. Division of labor means labors को divide करना according to different works, different works जो होते हैं organization में, so that one person will not do all the work in the organization. The work should not be burdened to only one person. Second is scalar process. It deals with the vertical growth of the organization, that is top to bottom level. Every higher office should control the lower office in the organization. And the third one is administration class, that there should be proper pay structure in the organization. उनका कहना था कि the organization में employees जो select होंगे वो on the basis of competencies and merit के base में select होने चाहिए. The fourth one is impersonality. Impersonality means कोई भी personal relation exist नहीं होने चाहिए. All सारे लोग equal होने चाहिए by in the organization. And fifth one is auditing. Means there should be proper auditing of all activities. अच्छे से checking होनी चाहिए. Second theory was given by Frederick Winslow Taylor, and that was known as scientific management theory. साइंस से इनका मतलब ये था कि मैं अपने कंसेप्ट में साइंस का यूज करूं. मींस एज साइंस में जैसे हम कुछ भी चीज ऑब्जर्व करते हैं, देन इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, देन उस फैक्ट को हम डिस्कवर कर देते हैं. तो इनका भी यही मतलब इनका मेन मोटिव यही था कि मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है उनको डिफाइन करूं, ऑब्जर्व करूं, उसके अल्टरनेट प्लान्स बनाऊं, देन उसे इम्प्लीमेंट कर दूं. एंड ही वाज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So he gave his principles. So some principles are that first is science not rule of thumb. Means टेलर कंसर्न वाज दैट कि हम हर समय वही रिजिड रूल्स फॉलो नहीं कर सकते व्हेन देयर इज अल्टरनेट प्लान अवेलेबल. जब डिफरेंट प्लान्स जो कि एफिशिएंसी बढ़ा दे कम टाइम पे, तो वो हमें फॉलो करने चाहिए. सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मींस यूनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में. थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मींस कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए. बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर. So the third theory was administrative management theory. It was introduced by Henry Fayol. He was also known as the father of administrative management theory. And in the next slide, there are some principles he contributed. Some of them are: first is division of work. Division of work means work should be divided into small tasks among workers based on their specialization so that they achieve specialization in that area. फॉर एग्जाम्पल हम हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस ये सब ऑर्गेनाइजेशंस में देख सकते हैं प्रिंसिपल जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मींस अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लीट एकदम फेयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो होनी चाहिए. अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कमिटमेंट टू फुलफिल अ टास्क गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव. एंड द थर्ड वन इज डिसिप्लिन. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन अच्छे तरीके से फॉलो होना चाहिए. जो सुपीरियर्स ने जो बोला है वो अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एंड फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड. सो यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक बॉस से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए. फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन.
मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में सारा जो गोल, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। डिफरेंट, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। सिक्स्थ इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर। बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये फेयर होना चाहिए। सेवेंथ इज स्केलर चेन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी चाहिए। मतलब एक बॉटम से लेकर टॉप तक या टॉप से लेकर बॉटम तक एक चेन में जाएगा वो, एकदम ही डायरेक्ट किसी के पास नहीं जा सकता, तो ये फॉलो होना चाहिए। एट्थ, स्पिरिट डी कॉप्स। मीन्स प्रमोट टीम स्पिरिट। एक मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए। So these are the criticism of classical theory. So first one is closed system. So in closed system they haven't considered the external environment. उन्होंने external environment को consider ही नहीं किया. Second is human behavior को भी उन्होंने consider ही नहीं किया. Human behavior भी बहुत affect करता है किसी organization की growth को. Third, उन्होंने देखा कि केवल economic reward, केवल money ही एक motivation, उन्होंने देखा कि यही किसी वर्कर को मोटिवेट कर देगा, बट नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल praise, recognition, better job status. And fourth is rigid. बहुत rigid थे इनके rules and no delegation. Means कहीं कहीं delegation थी तो बहुत limited थी, कहीं तो थी ही नहीं. So after classical theory, new classical theory was come and it was introduced by Elton Mayo. So Elton Mayo का main focus यही था कि ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक डिटरमाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को। मतलब अगर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर वर्कर में अगर अच्छा नहीं होगा तो वो भी बहुत अफेक्ट करता है। तो इनका मेन फोकस ह्यूमन रिलेशन के ऊपर था। So let's study the contribution of. So these are the contribution of new classical theory. तो न्यू क्लासिकल थ्योरी का मेन फोकस यही था कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट एक वर्कर में, किसी भी वर्कर का उसमें ज़्यादा फोकस किया जाए। एंड यहाँ पर मिक्स ऑफ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए। सो फर्स्ट इज सोशल सिस्टम। सो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोशल सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाए, मतलब जहाँ वो इंटरेक्टिव भी रहे और वहाँ पर वर्कर को एज अ रोबोट की तरह ट्रीट ना किया जाए। सो सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट। सो सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत अफेक्ट करता है एक वर्कर को एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो सोशल उसका इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, प्लस साइकोलॉजिकल मन से भी वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। कैसे? नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स उसे प्रोवाइड करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉप टू बॉटम मीन्स इंफॉर्मेशन अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट को पास करे एक वो, एंड बॉटम टू टॉप उससे फीडबैक सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स को क्या दे, तो ये टू वे कम्युनिकेशन दोनों होनी चाहिए। फोर्थ इज नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। इनका मानना था कि केवल मनी को ही हम सोल मोटिवेटर ना देखे, देयर शुड बी नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रेज, मोटिवेशन, और ये भी बहुत अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं दिस ह्यूमन अप्रोच से। तो हेयर आर द क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो फर्स्ट ये था कि ह्यूमन रिलेशन में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रखा है, काम पे कम फोकस और ह्यूमन रिलेशन में ज़्यादा कंसिडर कर रखा है न्यू क्लासिकल थ्योरी में। एंड थर्ड वन इज सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रखा है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा कोई भी वर्कर बट उसे सैलरी कम मिल रही है तो तब भी वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, तो ये भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया। So the third theory was modern theory. And modern theory was come up with its main objective that organization should consider external environment, because external environment भी बहुत अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को। तो जैसा न्यू क्लासिकल थ्योरी ने ह्यूमन रिलेशन में जोर दिया, तो मॉडर्न थ्योरी में इनका मेन फोकस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। सो मॉडर्न थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम अप्रोच से डिनोट किया गया है। तो सिस्टम अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सिस्टम्स होते हैं, वो एक सिस्टम की तरह काम करती है। मींस देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, और उसमें भी सब सिस्टम्स होते हैं। मतलब एक में अफेक्ट होगा तो होल ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम से कंसिडर किया गया है, मींस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी उसे कंसिडर करना चाहिए।
So here are the feature of system approach. So first is open system. Open system means organization को external environment consider करना चाहिए. External environment means like जैसे organization input लेती है environment से, that is raw materials, labors, etc. and उसे output में convert करती है, that is customer को product या service provide करती है. तो जो भी external environment में changes आ रहे हैं means जो भी different form of feedback आ रहे हैं customer के द्वारा, then organization को उसके according change होना चाहिए. Second is adaptive changes means अडेप्टिव सिस्टम की तरह काम होता है क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है. थर्ड वन इज मल्टीपल वेरिएबल. वो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो को भी मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करना चाहिए. And the next theory was contingency approach under modern theory. So here I have taken example from Mahabharata. So जब महाभारत वॉर एंड हुई, खत्म हुई, तो भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु मिली हुई थी और वो बाणों की शैया में लेटे हुए थे. और वो एक ग्रेट वॉरर एज वेल एज ग्रेट रूलर भी थे और उन्हें बहुत प्रिंसिपल्स भी पता थे जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं. तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि तब मोनार्की स्ट्रक्चर फॉलो होता था और वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. तब भगवान श्री कृष्ण जी की एडवाइस पे पांडव भीष्म पितामह जी के पास उनसे प्रिंसिपल जानने पहुंचे. सो इन द नेक्स्ट slide there are some principles that was earlier told by Bhishma Pitama. So here I have taken some examples from Shanti Parv. So शांति पर्व में जब भीष्म पितामह जी ने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया मींस न्यू क्लासिकल थ्योरी, उन्होंने एक्सप्लेन की कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशन होने चाहिए बट वो सबऑर्डिनेट्स के प्रति ना ज्यादा हार्ड होने चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होने चाहिए सुपीरियर्स के द्वारा. सो ही शुड बी लाइक अ स्प्रिंग सीजन. उनने स्प्रिंग सीजन से डिनोट किया. जैसे स्प्रिंग सीजन में सन जो होता है ना ज्यादा गर्मी देता है ना ज्यादा ठंडी देता है, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही एटीट्यूड रखना चाहिए, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा हार्श एटीट्यूड एक सुपीरियर्स को. देन उन्होंने बताया फॉरगिवनेस भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि फॉरगिवनेस भी बहुत मैटर करती है बट हमेशा बार बार फॉरगिवनेस भी बहुत हार्मफुल हो सकती है. तो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे से एफिशिएंट लेवल में काम नहीं होगा तो फॉरगिवनेस भी होनी चाहिए बट नॉट ऑल द टाइम. तो भीष्म पितामह जी ने और भी कुछ बातें बताई. जैसे ऑर्गेनाइजेशन को शुड वर्क लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी. इट मींस उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड है उसको डिनोट किया प्रेग्नेंट लेडी से और जो बच्चा होता है चाइल्ड जो गर्भ में होता है उसे डिनोट किया जो भी सारे मेंबर्स वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो जैसे प्रेग्नेंट लेडी कुछ भी नहीं खाती है जो उसे अच्छा लगता है बिकॉज चाइल्ड की केयर के लिए, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए. जहाँ सबका बेनिफिट हो वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए. So here I have taken some examples from scriptures. So रामायण में जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे भगवान राम जी ने जब राम सेतु ब्रिज बनाने का आदेश दिया था तो हनुमान जी को उन्होंने टास्क दिया सीता माता जी की खोज करना, लंका में जाना. नल नील को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ब्रिज बनाने की. तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग काम डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन. सेकेंड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मीन्स हनुमान जी भी अकेले रावण को पकड़ सकते थे लंका में बट उन्होंने इंडिविजुअलिज्म दिखाया, अकेला नहीं दिखाया कि मैं अकेले कर लेता हूँ. उन्हें कोऑपरेशन दिखाया सबके साथ मिलकर. वैसे ही हम एग्जांपल महाभारत से ले सकते हैं. महाभारत में जब पांडव और कौरव को द्रोणाचार्य ने आदेश दिया था कि द्रुपद को पकड़ के लाओ, तो कौरवों ने इंडिविजुअलिज्म दिखाया. मतलब सब अकेले में ईगोइस्टिक में सब गए कि मैं करके लाऊंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा, बट वो 100 भाई भी कैच नहीं कर पाए. वहीं पांडवों ने कोऑपरेशन दिखाया, साथ मिलकर 5 भाइयों ने भी द्रुपद को आसानी से कैच कर लिया. तो ऑर्गेनाइजेशन को भी कोऑपरेशन दिखाना चाहिए. वहां पर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, साथ मिलकर कोऑपरेशन होना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगेन हम रामायण से देख सकते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव एक ही डायरेक्शन में जा रहा था. और न्यू क्लासिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम रिलेशनशिप देख सकते हैं. भगवान श्री राम जी के भी जो भी लोग उनकी मदद कर रहे थे ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे. इवन स्क्विरल के साथ भी अनइमेजिनेबल रिलेशन था भगवान का. और वही कॉन्ट्राडिक्ट रावण के रिलेशन विभीषण के साथ बहुत ही अच्छे नहीं थे और वही डिस्ट्रक्शन का कारण बना. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, सुपीरियर्स को फीडबैक लेनी चाहिए सबॉर्डिनेट. तो ऑल राइट, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. होप यू लाइक इट.